नमस्कार बच्चों। सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉइस के पार्ट 1 में हम पढ़े कि कैसे सिंदबाद एक निर्जन द्वीप में अकेला फंस जाता है, और अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वो कैसे यहाँ से निकल भागने के प्रयास करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। Adjusting myself, I settled securely in it, in the hope that the rock, when it might take the flight next morning, would carry me away with it from the deserted island. And this was exactly what did happen. As soon as the sun rose in the morning, the bird woke from his nest into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so swiftly that I almost lost awareness. जैसा कि निश्चित था, वह पक्षी एक अंडे को गर्म रखने के लिए अपने पंखों से ढककर उस पर बैठ गया। मैं उस अंडे के करीब इस अवस्था में बैठा था कि उस पक्षी का एक पैर, जो कि एक पेड़ के तने के समान बड़ा था, ठीक मेरे सामने था। अपने आप को समायोजित कर मैं सुरक्षित रूप से जगह बनाकर उसमें बैठ गया, इस आशा में कि यह पक्षी कल सुबह उड़ते वक्त मुझे इस निर्जन टापू से दूर अपने साथ ले जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही अगली सुबह सूर्य उदय हुआ, वह पक्षी जगा और अपने घोंसले से मुझे साथ लिए ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया, इतना ऊपर कि अब मुझे धरती तक दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक वह इतनी तेज़ी से नीचे की ओर आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। When I became aware that the rock had settled and I was once again upon the solid ground, I quickly released myself from its foot, and not a moment too soon, for the bird pounced upon a huge snake and killed it with a few blows from its powerful beak, and holding it up, rose up into the air once more and soon disappeared from my sight. When I had looked about me, I began to doubt if I had made a mistake by leaving the deserted island. जब मुझे यह पता चला कि रॉक नीचे उतर चुका है, तो मैं पुनः ठोस जमीन पर हूँ। मैंने शीघ्र ही अपने आप को उसके पैर से बंधन मुक्त कर लिया, और ऐसा किए एक क्षण भी नहीं हुआ था कि वह पक्षी एक महाकाय सांप पर झपटा, उसे अपनी शक्तिशाली चोंच के कुछ प्रहारों से मार डाला और उसे लिए एक बार फिर ऊपर उड़ गया। जल्दी ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। जब मैं अपने आसपास देख चुका, तो मुझे एक शक होने लगा कि क्या मैंने उस निर्जन द्वीप को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। अब आगे, द वैली ऑफ डायमंड्स। द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ was quite deep and narrow, and was surrounded by high mountains, so erect and rocky that there was no way to climb up to their sides. As I walked about in search of some way of escaping from this place, I observed that the ground was covered with diamonds, some of them of a huge and unexpected size. हीरो की घाटी। मैंने खुद को जिस घाटी में पाया, वह काफ़ी गहरी और संकरी थी, और चारों तरफ इतने ऊंचे, खड़े और पथरीले पहाड़ों से घिरी थी कि उसके अगल बगल चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। मैं जब यहाँ वहाँ चलते हुए यहाँ से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मैंने देखा कि भूमि हीरों से ढकी हुई थी, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित रूप से आकार में बड़े थे। This view gave me a great pleasure. But my glee was soon ended when I also saw numerous snakes, which were so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant very easily. Luckily for me, they appeared to hide in the caves during the daytime, and they only came out by the night time because of their enemy, the rock. इस दृश्य ने मुझे अत्यंत प्रसन्नचित्त कर दिया, पर मेरी यह खुशी जल्द ही खत्म हो गई जब मैंने यह भी देखा कि वहाँ अनेकों सांप थे, जो इतने लंबे और विशाल थे कि उनमें से सबसे छोटा सांप भी एक हाथी को निगल सकता था। खुशकिस्मती से वो दिन में गुफाओं में छुप जाते थे और केवल रात्रि काल में ही बाहर आते थे। कारण था उनका दुश्मन रॉक।
All day long I moved up and down through the valley, and when it grew dark, I went into a cave, and having blocked the entrance with a stone, I ate the remaining food and lay down to sleep. But all through the night the snakes crawled to and fro, hissing terribly, so that I could barely close my eyes with fear. I was much thankful when the morning appeared, and when I guessed the silence that the snake had moved back to their place. I came quickly out of my cave and moved up and down the valley again, kicking the diamonds out of my way, for I felt that they were in fact worthless things to a man in this situation. पूरे दिन मैं घाटी के ऊपर नीचे घूमता रहा, और जब अंधेरा फैलने लगा तो एक गुफा में चला गया और उसका मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया। प्रवेश बंद करने के बाद मैंने अपना बचा हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गया। पर पूरी रात सांप फुफकारते हुए इधर उधर रेंगते रहे, जिसके कारण मैं मुश्किल से अपनी आँखें डर के मारे बंद कर सका। मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी था जब अगली सुबह हुई और जब मैंने सन्नाटे से यह अंदाज़ा लगा लिया कि सांप अपनी जगहों पर वापस जा चुके हैं। मैं जल्दी से गुफा से बाहर निकला और पुनः घाटी में ऊपर नीचे चलने लगा और हीरों को लात मारकर अपने मार्ग से हटाने लगा, क्योंकि मुझे यह आभास हुआ कि ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के लिए ये सब बेकार थे। At last, being very tired, I sat down upon a rock, but I had hardly closed my eyes when I felt that something fell to the ground with a thud close beside me. अंत में काफ़ी थक जाने पर मैं एक चट्टान पर बैठ गया, पर मैंने अभी मुश्किल से अपनी आंखें बंद ही की थी कि मुझे लगा कि कोई चीज़ थट की आवाज़ के साथ मेरे निकट गिरी है। It was a huge piece of fresh meat, and as I looked at it, few more pieces rolled over beside me. I had always thought that the stories the sailors told about the famous Valley of Diamonds were not true, but now I believed them. These merchants came to the valley at the time when the eagles had hatched their young ones. The merchants then threw great chunks of meat into the valley. The chunks, falling with so much force upon the diamonds, were sure to take up some of the precious stones with them. When the eagles pounced upon the meat and carried it off to their nests to feed their hungry babies. यह एक ताज़े मांस का बड़ा टुकड़ा था और मेरे देखते ही देखते कुछ और टुकड़े लुढ़क कर मेरे पास आ गए। मैंने हमेशा ऐसा सोचा था कि नाविकों द्वारा सुनाई गई प्रसिद्ध घाटी की कहानियाँ सच नहीं हैं, पर अब मुझे उन पर विश्वास हो गया। ये सौदागर इस घाटी में तब आते थे जब चीलें अपने बच्चों को जन्म दे देती थी। तब ये सौदागर घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंकते थे। ये टुकड़े हीरों पर इतने ज़ोर से गिरते थे कि निश्चित था कि वो अपने साथ कुछ कीमती हीरे भी ले लें। जब ये चीले इन मांस के टुकड़ों पर झपटे और अपने साथ अपने घोंसलों तक अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए ले गए। Then the merchants would scare away the parent eagles with shouts and outcries to secure their treasures. Until this moment, I had looked upon the valley as my deathbed, for there seemed no possibility of getting out of it alive. But now I took courage and began to search for the means for escaping from this place. I began to pick up all the big diamonds I could find and kept them very carefully in my leather wallet. I tied it to my belt. I then chose the piece of meat which seemed most suitable to my purpose, and with the help of my turban tied it very tightly to my back. Having done this, I laid down upon my face and waited for the coming of the eagles. तब ये सौदागर इन अभिभावक चीलों को अपने चीख पुकारों से डराकर भगा देते थे, जिससे कि वे सब अपने खजानों को सुरक्षित कर सकें। अब तक मैंने इन घाटी को अपनी एक मृत्युशैया के रूप में देखा था, क्योंकि यहाँ से जिंदा निकल पाने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। पर अब मैंने साहस किया
और इस जगह से पलायन के साधन की खोज करने लगा। मैंने सारे बड़े आकार के हीरों को चुनना शुरू किया और बड़ी ही सावधानी से अपने चमड़े की झोली में डाल अपनी कमरबंद से बांध लिया। फिर मैंने एक मांस का टुकड़ा चुना जो मेरे उद्देश्य के लिए मुझे उपयुक्त लगा और अपनी पगड़ी की सहायता से अपनी पीठ से कसकर बांध लिया। ऐसा कर मैं अपने मुंह के बल लेट गया और चीलों के आने का इंतज़ार करने लगा। I soon heard the noise of flapping of their wings above me, and as I expected, one of them seized upon my piece of meat and took flight slowly towards his nest, into which he presently dropped me. Luckily for me, the merchants were on the watch, and setting up their usual shouts, they rushed to the nest, scaring away the eagle. Their amazement was great when they saw me, and also their anger for having robbed them of their usual treasures. But when I showed the diamonds to them, all of them crowded round me, wondering at my adventures and approving the plan by which I had escaped from the valley. At night, they led me into their camp. I stayed with the merchants for a few days, and then, as they were sailing homewards, I gladly joined them. शीघ्र ही मुझे अपने ऊपर उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और जैसी आशा थी उनमें से एक ने मेरे वाले मांस के टुकड़े को दबोचा और अपने घोंसले की तरफ धीमी गति से उड़ चला, जिसमें उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी खुशकिस्मती से सारे सौदागर निगरानी रखे हुए थे और अपनी हमेशा अनुसार चीखों के साथ वो उस चील पक्षी को डराकर उड़ाते हुए घोंसले के पास पहुँचे। उन्हें बेहद अचंभा हुआ जब उन्होंने मुझे देखा और साथ ही नाराज़ भी हुए कि मैंने उनके हमेशा के खजाने को उनसे लूट लिया था। पर जब मैंने उन्हें हीरे दिखाए तो वो सारे के सारे मेरे चारों ओर भीड़ लगाकर जुट गए और मेरे रोमांचकारी अनुभवों पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। साथ ही मेरी घाटी से बच निकलने की योजना को अपनी सहमति भी दी। रात्रि प्रहर वो मुझे अपने शिविर ले गए। मैं उन सौदागरों के साथ कुछ दिन रहा और तब जब वो घर की तरफ जल यात्रा के लिए तैयार हुए तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ शामिल हो गया। That's all. Thank you. जय हिंद।